سابق امریکی وزیر خارجہ ہینری کیسنجر 100 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہینری کیسنجر نے امریکہ کے صدر نکسن اور صدر فورڈ کی انتظامیہ کے دوران امریکہ کے اعلیٰ سفارتکار اور قومی سلامتی کے مشیر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ کئی دہائیوں پر مشتمل اپنے کیریئر کے دوران انہوں نے امریکی خارجہ پالیسی میں اہم کردار ادا کیا۔ ہینری کیسنجر 1923 میں جرمنی کی ریاست باویریا میں پیدا ہوئے تھے۔ ہینری کیسنجر 1969 میں امریکی صدر رچرڈ نکسن کے قومی سلامتی کے مشیر مقرر ہوئے۔ انہوں نے چین کے ساتھ سفارتی تعلقات، اسرائیل اور اس کے پڑوسیوں کے درمیان 1973 کی یوم کپور جنگ کے خاتمے، پیرس معاہدے اور ویتنام جنگ کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہیں ویتنام جنگ کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرنے پر 1973 امن کا نوبل انعام بھی دیا گیا۔ لاہور کے سروسز اسپتال کا زیر تعمیر 3 منزلہ بلاک گر گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بلاک تعمیراتی کاموں کے باعث خالی تھا۔ ریسکیو ٹیمیں امدادی کاموں کے لیے روانہ ہو گئی ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے۔ لاہور کے سروسز اسپتال کا زیر تعمیر 3 منزلہ بلاک گر گیا۔ مزید جان لیتے ہیں شعیب بھٹی سے۔ شعیب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج بالکل سروسز ہاسپٹل کا ایک 3 منزلہ بلاک جو ان سے گر گیا۔ ریسکیو کام کے مطابق ابتدائی اطلاعات زیر تعمیر جو بلاک ہونے کی وجہ سے خالی تھا، اور ریسکیو 1112 کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ کے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ بلاک میں کام کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے مزدور وغیرہ ہونے کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ ہم ریسکیو ٹیمیں ملبے کی سرچنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، اور ریسکیو 1112 کی ٹیموں نے لائف لوکیٹر سے ملبے میں زندہ افراد کی تلاش بھی شروع کر دی گئی ہے۔ جی شعیب بھٹی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سعودی عرب نے پاکستان کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ $3 ارب کی ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سعودی فنڈ برائے ڈیولپمنٹ نے مملکت سعودی عرب کی جانب سے 5 دسمبر 2023 کو مدت مکمل کرنے والے $3 ارب کی ڈپازٹ کی مدت میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔ یہ رقم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جانب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع ہے۔ ڈپازٹ کی مدت میں توسیع مملکت سعودی عرب کی جانب سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو فراہم کی جانے والی معاونت کا تسلسل ہے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے اس اقدام سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو برقرار رکھنے اور ملک کی معاشی ترقی میں مدد ملے گی۔ پاکستان نے مختلف شعبوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے کویت کے ساتھ 7 معاہدوں اور 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کر دیے ہیں۔ ان معاہدوں پر دستخط نگراں وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ اور کویت کے اول نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شیخ طلال الخالد الاحمد الصبح کے درمیان کویت سٹی میں ہوئے ہیں۔ ان معاہدوں کا تعلق تحفظ، خوراک، زراعت، پن بجلی، معدنیات کی صنعت کے لیے کان کنی کے فنڈز کے قیام، ٹیکنالوجی زون کی ترقی اور ساحلی علاقوں پر جنگلات کے تحفظ کے شعبوں سے ثقافت، فن، ماحولیات اور پائیدار ترقی کے شعبوں میں 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ انوار اللہ کاکڑ نے کویت کے ساتھ معاہدوں کو ملک میں سرمایہ کاری لانے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایک اور کامیابی قرار دیا۔ نگراں وزیر اعظم اقوام متحدہ کی 28ویں کانفرنس آف پارٹیز میں شرکت کے لیے دبئی پہنچ گئے ہیں۔ یو اے کے وزیر انصاف نے انوار الحق کاکڑ کا استقبال کیا۔ انوار الحق کاکڑ 28ویں کانفرنس آف پارٹیز سے پاکستان وفد کی سربراہی کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم اقوام متحدہ کی 28ویں کانفرنس آف پارٹیز میں شرکت کے لیے دبئی پہنچ چکے ہیں۔ یو اے ای کے وزیر انصاف نے انوار الحق کاکڑ کا استقبال کیا۔ انوار الحق کاکڑ 28ویں کانفرنس آف پارٹیز میں پاکستانی وفد کی سربراہی کریں گے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات سے قبل سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کا آج کوئٹہ میں پاور شو ہوگا۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو پارٹی کے یوم تاسیس پر منعقدہ بڑے جلسے میں جیالوں کا لہو گرمائیں گے۔ ایوب اسٹیڈیم میں بڑے جلسے کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ جیالوں کا جوش و خروش عروج پر ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگ گئے ہیں۔ رپورٹ ہے کوئٹہ سے شہزاد ممتاز کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا 56واں یوم تاسیس کوئٹہ میں منایا جائے گا۔ یوم تاسیس کے موقع پر پیپلز پارٹی بڑا سیاسی پاور شو کرے گی۔ جلسے میں شرکت کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت کوئٹہ پہنچ چکی ہے۔ جلسہ کوئٹہ کے ایوب اسپورٹس کمپلیکس کے فٹ بال گراؤنڈ میں منعقد کیا جائے گا، جہاں تیاریاں جاری ہیں۔ جلسہ گاہ میں 30,000 کرسیاں لگائی جائیں گی، جبکہ پویلین کو اسٹیج کی جگہ استعمال کرنے کی بجائے گراؤنڈ میں اسٹیج تیار کیا جا رہا ہے۔ جلسہ گاہ میں روشنی کے لیے بڑی لائٹوں کی تنصیب کا عمل بھی جاری ہے۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی و صوبائی قیادت کا دعویٰ ہے کہ کوئٹہ میں جلسہ تاریخی ہونے جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے صوبے مضبوط ہیں تو وفاق مضبوط ہے، فیڈریشن مضبوط ہے، تو وہی آج کل پرسوں کا دن ایک تاریخی دن ہے۔ آئیں سب مل کے اس تاریخی دن کو
हम बनाए। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने ये जो हमें एजाज़ और ये जो इज़्ज़त दी कि बलूचिस्तान को और कोयटा में ये मौका दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी या जियालों की कामयाबी नहीं है, ये बलूचिस्तान सबकी कामयाबी है। जलसे से कबल जियालों का जोश व खरोश उरूज पर पहुंच चुका है। मकामी क़यादत और कारकुनों की जानिब से रैलियां निकाली जा रही हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पीपल्स पार्टी के झंडों की भरमार है, जबकि शाहराहों पर खैर मकदमी नारों पर मबनी बैनर्स और पैनाफ्लेक्स लगा दिए गए हैं। जलसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मरकजी व सूबाई कायदीन खिताब करेंगे। जलसे में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत मुतवक्के है। कैमरामैन इरशाद रब्बानी के साथ शहजाद मुमताज, कोयटा। अब तक कोयटा में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर अयूब फुटबॉल ग्राउंड में लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं कोयटा से ब्यूरो चीफ नूर इलाही बुगटी से। जी नूर इलाही। जी बिल्कुल, अगर जलसे की तैयारियों के हवाले से देखें तो गुज़िश्ता रात ही तकरीबन ये स्टेज भी मुकम्मल कर दिया गया था, जबकि ये ग्राउंड जो है, जो अयूब स्टेडियम का ग्राउंड है, उसको यहाँ पर कुर्सियाँ जो है वहाँ पर लगा दी गई थी, जबकि लोगों की भी बड़ी तादाद जो है उसका इस वक्त सिलसिला आने का शुरू हो गया। 10 बजे का टाइम दिया था लोगों को यहाँ पर जलसे के लिए, लेकिन 10 बजे से पहले हमने देखा कि लोग आना शुरू हैं। ताहम जो बाहर के काफिले हैं, बताया जा रहा है डेरा मुराद जमाली से, डेरा लयार से, सिब्बी से, दीगर इलाकों से भी जो है वो कानवाई की सूरत में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ताहम यहाँ जो अगर बाहर के हवाले से तो सबसे पहले सादिक उमरानी का काफिला यहाँ पर पहुंचा। सादिक उमरानी जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो खुद भी यहाँ पर मौजूद थे, उनका काफिला यहाँ पर पहुंचा। लेकिन जो दीगर काफिले जो पश्तून इलाके से हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सर्दी का मौसम है, इन्होंने टाइम भी 10 बजे का रखा है। 10 बजे का मकसद है 11 बजे का उनका कहना था कि 11 बजे जलसा शुरू कर देंगे, लेकिन अभी भी लोग जो है वो आ रहे हैं। जो कोयटा शहर के लोग हैं, ख़ासतौर पर जो सरियाब से अली मदद जतक का हल्का इलाका है, वहाँ से लोग जो अभी तक आ रहे हैं। जो बाहर के लोग हैं वो बताया जा रहा है कि वो रास्ते में तकरीबन थोड़ी देर के बाद वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आज का जलसा इस हवाले से भी इंतहाई अहम है, यौम तासीस के हवाले से, कि बलूचिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा, बल्कि पीपल्स पार्टी की तारीख में पहली दफ़ा जो है यहाँ यौम तासीस मनाया जा रहा है। और यहाँ ये भी बताया जा रहा है क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जबकि इससे कबल खुर्शीद शाह और नासिर हुसैन शाह साहब जो है वो 2 दिन पहले यहाँ पर पहुँच गए थे। जो दीगर लीडरान थे वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। बताया जा रहा है कि आज आसिफ अली जरदारी की क़यादत पे यहाँ पर लोग जो है वो शमूलियत का भी ऐलान करेंगे। बहुत से ऐसे नाम हैं जो साबिक अरकान असेंबली में बताया जा रहा है कि वो शमूलियत का ऐलान करेंगे। जलसे की सिक्योरिटी के हवाले से देखें तो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, दीगर जो असास इदारे के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि पुलिस के सादे कपड़ों में मलबूस एहलकार भी यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। जो आने जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पर स्कैनर लगाए गए हैं, लोगों की बाकायदा तलाशी ली जा रही है। तलाशी के बाद उनको यहाँ अंदर आने दिया जा रहा है। मीडिया के लिए बाकायदा पासेस बनाए गए हैं, तो मीडिया के पास चेक करके उनको यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। आज जो स्टेज है, स्टेज पर उनकी अपनी सिक्योरिटी है। जो आसिफ अली जरदारी की और बिलावल भुट्टो जरदारी की सिक्योरिटी जो है उन्होंने वहाँ पर संभाला हुआ है। जी। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरबराह साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं कि हम रोटी, कपड़ा और मकान के मंशूर पर कायम हैं। तबकाती सियासत से पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर पैगाम में कहा कि कौम खास तौर पर नौजवान बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ दें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उन्हें मायूस नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के 56वें यौम तासीस पर अपने एक पैगाम में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ जमात नहीं है, एक तहरीक है। बानी चेयरमैन शहीद भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को पाया तकमील पर पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कायदे अवाम शहीद भुट्टो ने अपनी जमात की बुनियाद सियासी तदब्बुर और दूर रस्त विजन पर रखी थी। कायदे अवाम के विजन पर अमल करते हुए हमें एक खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान तामीर करना होगा। एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें तमाम हमवतनों के हुकूक और मफादात का यकसा ख्याल रखा जा सके। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क में आमदियत, मरकज़ियत पसंद सोच और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ ज़िंदगी भर मज़ाहमत की। आगे बढ़े आपको बताएं, कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह जाती उम्रा मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पहुंच गए हैं। मियां नवाज शरीफ के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। सीनियर रहनुमा पार्टी कायद को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी होने पर मुबारकबाद देंगे। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर पर पेश रफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तफसीली मुशावरत भी होगी।
आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के चुनाव के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। अली परवेज मलिक की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में हल्का 139, 138 और 140 के उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू किए गए हैं। अपडेट करें आपको, नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ है। आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के चुनाव के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। अली परवेज मलिक की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में हल्का 139, 138 और 140 के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए। कोऑर्डिनेशन कमेटी अपनी तजावीज़ मरकज़ी क़यादत को पेश करेगी। आम इंतखाबात के हवाले से नून लीग की तैयारियाँ, उम्मीदवारों का चुनाव जारी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास लाहौर में हुआ। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद ना हो सके। चेयरमैन पीटीआई फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत असद उमर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और सियासत छोड़ने से मुतालिक अपना तहरीरी जवाब जमा करवा दिया गया। केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ारत दाखिला के मुताबिक हालात की वजह चेयरमैन पीटीआई को नहीं ला सकते। मेंबर निसार दौरानी निर्माण से कहा गया कि आप जेल जाकर ट्रायल कर सकते हैं, आप केस को चलाना भी चाहते हैं और फिर हाजिर भी नहीं होते। दौरान समाअत पीटीआई वकील शुएब शाहीन ने कहा कि आखिरी समाअत का ऑर्डर हमें नहीं मिला। वकला को भी इजाजत है कि चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात कर सके। आपके ऑर्डर पर जानबूझकर अमल नहीं किया जा रहा। फैसल चौधरी ने कमीशन को बताया कि फवाद चौधरी अडियाला जेल में है। असद उमर इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए हैं। मेंबर कमीशन ने कहा कि आप तो इलेक्शन कमीशन में पेश भी नहीं होते, जिस पर असद उमर का कहना था कि मैंने तो सबसे ज्यादा पेशियां दी हैं, मैं तो सियासत भी छोड़ चुका हूँ। मेंबर कमीशन का कहना था कि नहीं, आप सियासत करें। असद उमर ने अपना तहरीर जवाब जमा करवा दिया। मेंबर से निसार दौरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। आगे बढ़े, आपको बताएं साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि आप ज़मानती मशल्कों के लिए मेरे पास जामिन भी नहीं रहे। लाल हवेली से बाहर निकालकर गंदे नाले में फेंकने की कोशिश नाकाम हो गई है। चेयरमैन पर फैसला दुरुस्त है। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जिस आदमी ने 16 मई का कहस ज़दा दौर देखा है, जिस आदमी ने 16 मई का क़यामत ज़दा, भूख ज़दा, नंग ज़दा, तबाही और बर्बादी का, इक्तसादी और माशी और समाजी तबाही का शब का दौर देखा है, वहाँ काम करने की जरूरत नहीं। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। स्पेशल सेंट्रल अदालत के हुक्म पर मोनिस इलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मोनिस इलाही को आज अदालत में पेश होने की मोहलत दी गई है। FIA ने चलान अदालत जमा कर रखा है। मोनिस इलाही से मुतालिब मुख्तलिफ मकामात पर इश्तिहारात आवेजा कर दिए गए हैं। इश्तिहारात के मतन के मुताबिक मोनिस इलाही रुपोश हैं, अदालत में पेश नहीं हो रहे। वेलकम बैक। बागात के शहर लाहौर पर अब्रे रहमत बरस पड़ा। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी आ गई। मज़ीद बारिश का भी इम्कान है। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आई। आसमान पर अब भी बादलों का बसेरा है। दिन भर वक्फे से बारिश मुतवक्का है। बारिश के बाइस दर्जा हरारत में कमी, मौसम मज़ीद सर्द हो गया। हुकूमती इक़दाम और लाहौर में सुबह सवेरे होने वाली बारिश से फ़ज़ाई आलूदगी में वाज़ेह कमी हुई है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आ गया है। स्मोक में कमी से शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची का दूसरा नंबर है। हुकूमती इक़दाम और लाहौर में सुबह सवेर होने वाली बारिश से फ़ज़ाई आलूदगी में वाज़ेह कमी आ गई है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आ गया है। लाहौर में बारिश के बायस फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में कमी आई है। स्मोक की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन और दीगर तजावीज़ के हवाले से वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से मज़ीद जानने के लिए हमने रब्ता किया अब तक लाहौर के नुमाइंदे शुएब भट्टी से। जो शुएब आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बाइस एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई है, जिसके बाइस लाहौर पहले नंबर से 6ठे नंबर पे आ चुका है, जिसमें आज सुबह जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 273 देखा गया और जिसके बाद
मजमूई तौर पे जो अब कमी आई है वो उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के करीब पहुंच चुका है और फ़िज़ाई आलूदगी में बेहतरी पाई जा रही है। दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि इस फ़िज़ाई आलूदगी से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए, चूँकि इस फ़िज़ाई आलूदगी के बाइस फेफड़ों और सांस की बीमारियों में मुब्तला जो उनसे शहरी हैं वो उनके लिए ये एक तशवीश का बाइस है और वो मास्क का ख़ास इस्तेमाल करें। ताहम एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होने के बाइस आंखों की बीमारियों में भी मौजूद बीमारियां भी फैली जा रही हैं। ताहम पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कैबिनेट मीटिंग बुला ली गई है। उनकी जानिब से आज दोबारा जुज़वी लॉकडाउन के हवाले से तजावीज़ जो उनसी हैं वो पेश की जाएंगी, जिसमें लाहौर में जुम्मा, हफ्ता और इतवार को तमाम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और स्कूल को मुकम्मल तौर पे बंद रखने की तजवीज़ दी जाएगी। ताहम कारोबारी मरकज़ जो उनसे हैं 3 बजे खोलने के हवाले से भी तजवीज़ पर गौर है। ताहम दूसरी जानिब जो फ़िज़ाई आलूदगी की जो मेन सबब है वो ट्रैफिक है और उसकी बेहतरी और रवानी को बरकरार रखने के हवाले से भी कुछ ऐसे तजावीज़ दी जाएंगी जिनके अंदर दोबारा फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने से रोका जा सके। ताहम इतवार को गुज़श्ता हफ्ते देखने में आया था कि इतवार को मुकम्मल तौर पे माल लोड बंद की गई थी और शाम के वक्त माल लोड खोल दी गई थी। इस भी तजवीज़ दी जा सकती है जिसके बाइस लेकिन चूँकि आज मौसम खुशगवार है और एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ साथ लाहौर में जो कि हवा में खनकी भी पाई जाती है, ताहम इस चीज़ पे हतमी फ़ैसला चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से दिया जाएगा कि क्या जुज़वी लॉकडाउन आज लगाया जाए या इसमें मज़ीद कोई फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। अफ़गान महाजरीन की वतन वापसी के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए 6 शहरियों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अफ़गान महाजरीन की बेदखली के वफाकी हुकूमत के फ़ैसले बुनियादी हुकूक़ के ख़िलाफ़ हैं। अफ़गान महाजरीन की शफ़ाफ़ अंदाज में वापसी के लिए खुद मुख्तार कमीशन तश्कील दिया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया। 18 रुकनी कौमी टीम बरास्ता दुबई सिडनी पहुंचेगी। 17 रुकनी मैनेजमेंट के 2 अरकान डॉक्टर सुहेल और शाहिद असलम स्क्वाड को बाद में ज्वाइन करेंगे। बैटिंग कोच एडम होलियाक और हाई परफॉर्मेंस कोच साइमन ग्रांट ऑस्ट्रेलिया में टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा। मियाँ बीवी के तैयारे में लड़ाई। स्विट्ज़रलैंड के शहर म्यूनिख से बैंकॉक जाने वाले जर्मन मुसाफिर तैयारे को भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में उतार लिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन फ़ज़ाई कंपनी लुफ्थैंज़ा की फ़्लाइट LH772K अमले ने बताया कि तैयारे में सवार मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई हो गई है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एविएशन सिक्योरिटी के हुकाम ने बताया कि मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई की वजह तो अभी तक मालूम नहीं हो सकी। लड़ाई के बायस मुसाफिर तैयारे को नई दिल्ली उतारा गया और जोड़े को जहाज़ से उतारकर सिक्योरिटी हुकाम के हवाले कर दिया गया, जबकि मुसाफिर तैयारा मामूली ताख़िर के बाद बैंकॉक रवाना हो गया। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया शाय और उर्वश की कीमतों में कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है। दुकानदार सरकारी रेट के बजाय शहरियों से मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। शहरी कहते हैं कि अफसरान अपने दफातर तक महदूद हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से कासिर हैं। वज़ीर जानते हैं नुमाइंदा अब तक सिफ्तान अली से। सिफ्तान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शादमान बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ आवाम की सहूलत के लिए सस्ते बाजार जो लगाया गया है, जहां आवाम की सहूलत के साथ साथ जो फल और सब्जियों के वाफर मिकदार में स्टॉल मौजूद है, मगर कीमतें ज्यादा होने से शहरी जो है ज़हनी दबाव का शिकार है। उनका ये कहना है कि पहले ही गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिसती हुई दिखाई दे रही है, मगर फल और सब्जियों की कीमतें ज्यादा होने से ज़हनी दबाव का शिकार है। 2 वक्त का खाना जो है वो भी अब आवाम के मुंह से जो है छीना जा रहा है। हुकूमत वक्त से अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।